अस्सलामुअलैकुम। बयान भी सुने मगर मुफ्ती हनीफ साहब जड़ा मांगरोल बयानात ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटे के बटन को भी दबा दे और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. وقال الله تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالحق هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم انشقاق القمر فأراهم انشقاق القمر مرتين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام بزرگوں اور دینی بھائیوں، سیرت کا عنوان دلائل نبوت یعنی معجزات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر اگلی جمعہ سے بات کا آغاز کیا تھا. معجزہ دلیل نبوت ہے نہ کہ مقصد نبوت. حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام مختلف زمانے میں مختلف معجزات دیے گئے. تمام انبیاء میں افضل الانبیاء والمرسلین، کل کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بزرگ اور بالا برتر ذات امام الانبیاء تاجدار مدینہ ہم سب کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بے شمار معجزات دیے گئے، جن میں کہ دو معجزے کا تذکرہ اگلی جمعہ میں ہوا تھا. ایک معجزہ قرآن کریم اور ایک معجزہ شق القمر. مختصراً دیگر چند معجزات کا تذکرہ کریں گے جن میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر کنکر اور پتھر کا تسبیح پڑھنا. روایت میں ہے حضرموت کے رؤسا ایک مقام کا نام ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. ایک رئیس نے، ایک سردار نے پیغمبر سے یوں کہا: ہم اپنے دل میں ایک بات چھپاتے ہیں، ہمارے دل میں چھپی ہوئی بات کیا ہے آپ بتا دے تو ہم ایمان لے آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بھائی یہ تو کاہنوں کا کام ہے، پیغمبر کا یہ کام نہیں ہے. دل کے چھپے ہوئے بھید اور اندر کے راز بتانا میں کوئی جوشی اور کاہن اور پنڈت اور نجومی تو ہوں نہیں، تو ہم کیسے پہچانیں کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ سامنے کے پتھر اگر وہ کلمہ پڑھ لے اور میرے پیغمبر ہونے کی گواہی دے دے تو کیا تم اسلام لے آؤ گے؟ آپ نے ان کنکر کو اپنی مٹھی میں دبایا
जैसे ही आपने वो कंकर अपने दस्ते मुबारक में लिए तो कंकर से आवाज आई, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हदरमौत के वो रआ था, उसी वक्त इस्लाम ले आए। बाज़ी रिवायत में है खुलफाए राशिदीन ने भी अपने हाथ में कंकर दबाए और अल्लाह के पैगंबर के अलावा खुलफाए राशिदीन के दस्ते मुबारक में भी इन कंकरों ने तस्बीह पढ़ी। तो आपके दस्ते मुबारक में कंकर तस्बीह पढ़ता था, यह आपके नबी होने की अलामत और निशानी थी। एक मर्तबा एक देहाती आका की खिदमत में हाजिर हुआ। वो अपने घर जा रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भाई कहां जा रहे हो? कहा मैं अपने घर जा रहा हूं। कहा एक काम तुम करोगे? का क्या काम बताइए? अतशहद, इस बात की क्या तुम गवाही देते हो अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अल्लाह ही माबूद है और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और अल्लाह के रसूल हैं। तो इसने कहा आपके रसूल और नबी होने की अलामत क्या है, आप बताओ। आका ने फरमाया, वो सामने जो दरख्त दिखता है उसकी डाली अगर गवाही दे तो क्या आप मुझे अल्लाह का पैगंबर मानोगे? 3 सहाबा से अलग अलग 3 रिवायतें हैं। उसने कहा जरूर। वो देहाती चला गया और उस दरख्त के पास जाकर के कहा डाली पकड़कर, तुझे अल्लाह का पैगंबर बुला रहा है। वो डाली दरख्त से अलहदा हुई, चलकर दरे अक़दस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिर हुई और उसने कलमा पढ़ा। आका ने फिर हुक्म दे दिए, वो डाली वापस चली गई और अपने दरख्त से लग गई। ये मुसलमान हो गए। दूसरी रिवायत में है अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक शख्स ईमान ले आए, सहाबी हैं। वो सहाबी नहीं थे, बाद में इस्लाम ले आए। ये तो इस्लाम ला चुके हैं। वो बनो आमिर के मोहल्ले के देहाती थे, ये दूसरे एक देहाती हैं। अल्लाह के पैगंबर की खिदमत में हाजिर हुए, इस्लाम ले आए। क्या मैं मुसलमान हूं, दिल की गहराइयों से मैंने इस्लाम कबूल किया है, लेकिन आप मुझे कोई अलामत बता दीजिए। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो सामने जो दरख्त नजर आता है इसको मेरे पास बुला ले। ये देहाती नौ मुस्लिम सहाबी उस दरख्त के पास पहुंचे और कहा अल्लाह के पैगंबर तुझे बुला रहे हैं। जैसे ही ये पैगाम उस दरख्त को दिया है, वो दरख्त दाएं बाएं मुड़ा और उसके रेशे और जड़ें कटी और वो उसी देहाती सहाबी के साथ चलकर अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब वो देहाती सहाबी कहते हैं, हस्बी हस्बी हस्बी, ऐ पैगंबर बस कर दो, मेरे लिए काफी हो गया। आपने वापस हुक्म दे दिया। वो अपनी जगह पर जाकर अपने जड़ों के समेत वापस अपनी जगह पर जाकर के बरकरार हो गए। एक और रिवायत में है, पहली रिवायत हजरत अनस की है, दूसरी रिवायत हजरत बुरैदा असलमी की है और तीसरी रिवायत हजरत जाबिर की है। एक सफर में अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम थे। आपको कज़ाए हाजत की जरूरत पड़ी, लेकिन दूर दूर आड़ करने की कोई चीज थी नहीं। आपने देखा कि एक दरख्त बहुत दूर नजर आता है, आपने इशारा करके उसको बुला लिया और इधर के दरख्त को इशारा करके अपने पास बुला लिया। आपने आड़ किया, जमीन हटी, आप कज़ाए हाजत से फारिग हुए। आपने दोनों तरफ के दरख्तों को वापस अपनी जगह पर जाने का हुक्म दे दिया और आप कज़ाए हाजत से फारिग हुए। ये अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबे दरख्तों का आका के ताबेदार हो जाना और दरख्तों का कलमा पढ़ना, पहली सूरत में पत्थर का कलमा पढ़ना।
4 चीजें हो गई। 5वीं चीज, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरजमीन अरब में पानी की बहुत तंगी होती है, आज भी है। खुसूसन हिजरत के बाद जब आका मदीना मुनव्वरा में थे, एक मर्तबा मकाम साहबा में हजरत साहबा किराम के साथ तशरीफ रखते थे। पानी नहीं था, आपके बर्तन में चंद कतरात पानी बाकी रह गया था। लोगों को पीने की भी जरूरत थी, खाना बनाने की भी जरूरत थी और वुजू भी करना था, लेकिन पानी तलाश के बावजूद मिला नहीं। लोगों ने आका से दरखास्त पेश की, साहबा ने। आपने अपना हाथ मुबारक उसमें दाखिल किया और आपके अंगुष्ठाए मुबारक से पानी के फव्वारे फूटे। हजरत अनस फरमाते हैं, उस वक्त हम 80 से ज्यादा लोग थे और आपकी उंगलियों मुबारक से निकलने वाला पानी हम सब के लिए काफी हो गया। बुखारी शरीफ के अंदर हजरत अनस की रिवायत है कि एक मौके पर हम 300 सहाबाए किराम की जमात थी। पानी नहीं था, नमाज का मसला था, पीने के भी पानी नहीं थे। आपने अपना हाथ मुबारक निकाला और एक बर्तन में फी इनाइन और एक रिवायत में फी मिग़दब, एक बड़े टप में आपने हाथ डाला और यहां फी इनाइन बर्तन में हाथ डाला और पानी के फव्वारे फूटे और पूरा का पूरा बर्तन पानी से भर गया। हजरत साहबाए किराम फरमाते हैं, जैसा कि चश्मे से पानी उबलता है, बर्तन से पानी उबलने लगा। वहुम सलासुमिअत रिजालिन, उस वक्त ये 300 सहाबाए किराम थे। बुखारी शरीफ के अंदर एक और रिवायत है, तकरीबन 1500 सहाबाए किराम की जमात थी। हुदैबिया का मौका था। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काफिले के पास पानी खत्म हो चुका था और लोगों को शिद्दत से प्यास और बेकरारी का आलम और वुजू के लिए भी पानी की जरूरत। आपने अपना हाथ मुबारक दाखिल किया और 1500 की जमात को वो पानी काफी हो गया। जब रावी हदीस से पूछा गया, कम कुन तुम, उस वक्त तुम कितने थे, तो कहा हम 1500 थे, लेकिन अगर 1,00,000 भी होते तो भी अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंगुष्ठाए मुबारक से निकलने वाला ये पानी जो बह चुका था, वो 1,00,000 से भी ज्यादा जमात को काफी हो जाता। इनको कहा जाता है अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माजिज़ात। आका खुद फरमाते हैं, इन्नी लआरिफु रजुलन काना युसल्लिमु अलैहि क़ब्ल अन उबअस। ऐलान नबूवत से पहले मक्का मुकर्रमा में अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक पत्थर रोजाना सलाम करता था और आका ने ऐलान नबूवत के बाद ये किस्सा बयान फरमाया, इन्नी लआरिफु रजुलन, मैं एक ऐसे मर्द को मैं एक ऐसे पत्थर को, इन्नी लआरिफु हजरन, मैं एक ऐसे पत्थर को पहचानता हूं जो ऐलान नबूवत से पहले भी मुझे सलाम किया करता था। उलमा ने लिखा है कि ये पत्थर हजरे अस्वद था जो अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोजाना सलाम किया करता था। मस्जिद नबवी पहले कच्ची थी, खजूर के दरख्त के सुतून थे और ऊपर में भी खजूर ही के लकड़े लगाए हुए थे, छत में भी, और उसके पत्ते लगा दिए जाते थे। आप उस्तवाना हंडाना, एक खजूर के दरख्त पर सहारा देकर के जुमा का खुतबा दिया करते थे। जब हजरत सहाबाए किराम ने मस्जिद नबी जब तामीर हुई तो मेंबर बन गया। जब मेंबर बन गया, पहली जुमा थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेंबर पर खड़े रह करके जब खुतबा इरशाद फरमाने लगे तो अब सहारा की जरूरत पेश नहीं आई, अब सहारा लगाने की जरूरत पेश नहीं आई। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खजूर के दरख्त पर सहारा लगाना छोड़ दिए। जैसे ही आपका दस्त मुबारक उस्तवानाए हन्नान उस खजूर के दरख्त से हटा रहा, उसने रोना शुरू किया। जैसे ऊंटनी अपने बच्चे से जुदाई पर बिलक बिलक करके रोती है, इस तरह उसने धारे मार करके रोना शुरू किया।
अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्त मुबारक, अपना हाथ उसके ऊपर रख दिया, वो खामोश हो गया और आका ने फरमाया, दो बातों में से एक बात मंजूर कर ले, या तो बदस्तूर तुझे इसी तरह लगा दे मस्जिद में और तू सरसब्ज और शादाब हो जावे, या तो मैं तुझे जन्नत में लगा दूं और जन्नत के चश्मे और जन्नत के पानी और जन्नत की नेमतों से तू सैराब हो और तू फलदार हो और रहमान ताला के औलिया तुझसे लुत्फ अंदोज हो। रिवायतों में है खजूर के तने में इस बात पर रजामंदी जाहिर की कि नहीं आका आप मुझे जन्नत में लगा दे। रिवायतों में है अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर उस पर दस्ते शफकत न रखते तो आका खुद फरमाते हैं कि वो कयामत तक रोता रहता। दूसरी रिवायतों में है कि इस दरख्त के रोने पर हजरत सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन भी रोने लगे। इसी रिवायत के झेल में लिखा है, इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मंसूब है ये बात कि इमाम शाफई फरमाते हैं कि हमारे आका का मस्जिद नबवी में मिंबर बनने के बाद उस तुवानाए हन्नाना पर दस्ते मुबारक न रखना और सहारा न देकर छोड़ देना और उसका रोते रहना और आका का दस्ते मुबारक रखने की वजह से उसका खामोश हो जाना, यह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुर्दों के जिंदा कर देने के मुकाबले में भी बड़ा मौजिजा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मौजिजा था, कब्र पर खड़े रहते तुम बिइज़्निल्लाह मुर्दा बाहर आ जाता। फरमाते ही इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह कि इसके मुकाबले में भी ये बड़ा मौजिजा है। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा नमाज ज़ोहर के बाद आप मदीने में हैं, हजरत अली को किसी काम से भेज दिए और इस मौके पर हजरत अली की वापसी क्या अभी वापसी मदीने में हुई नहीं थी, असर की नमाज का वक्त हो गया और आपने निश्चय अव्वल में असर की नमाज अदा कर ली। हजरत अली जब तशरीफ ले आए, आका घर में मौजूद थे। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु काम निपटा करके जब पहुंचे हैं अल्लाह के पैगंबर के पास, हजरत अली की रान पर पैर पर आका सर रख करके सो गए। हजरत अली ने यह ख्याल किया चूंकि नमाज का वक्त तो निस्पेसानी में पढ़ते थे, इस ख्याल से कि अभी असर पड़ी नहीं होगी, इसलिए हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठ गए और आका अपना सर मुबारक रख कर पैर पर सो गए। हजरत अली के असर की नमाज का वक्त निकल गया। हजरत अली ने बर्दाश्त नहीं किया कि मेरी वजह से आका की नींद खराब हो या आका को कोई अजियत पहुंचे, तो जरा बराबर भी हरकत नहीं होने दी। इतने में असर की नमाज का वक्त खत्म हो गया, आफ्ताब गुरूब हो रहा है। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुली, फरमाया अली असर की नमाज का क्या हुआ, तुमने असर की नमाज पढ़ी? कहा मैंने असर की नमाज नहीं पढ़ी है और आपकी राहत रसानी के लिए और आपको तकलीफ न हो इसलिए मैंने हरकत करना गवारा नहीं किया। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरज को हुक्म किया। सूरज गुरूब होने के बाद वापस लौट आया अस्मा बिन्त उमैस से। ये रिवायत बुखारी में भी है, ये रिवायत मुस्लिम में भी है और कुतुब हदीस की मुतअद्दिद किताबों में ये रिवायत मौजूद है। अस्मा बिन्त उमैस राविया है, वो फरमाती है कि अल्लाह के नबी के हुक्म पर सूरज वापस लौट आया और अस्मा फरमाती है मैंने सूरज के गुरूब होने को भी देखा और मैंने सूरज के तुलू होने को देखा और तुलू के बाद गुरूब होने को भी देखा। जब हजरत अली नमाज असर से फारिग हो गए उसके बाद वापस सूरज गुरूब हो गए। इसको मौजिजा कहते हैं। सूरज गुरूब के बाद
2 मरतबा गुरूब के बाद तुलू हुआ है। एक अली की असर की नमाज के बाकी रहने पर, और एक बनु इसराइल के एक जबरदस्त पैगंबर यूशा इब्ने नून का जमाना था। हजरत यूशा इब्ने नून मुल्क शाम में जहां बैतुल मुकद्दस है उसकी फतह के लिए निकले थे। बहुत बड़ा लश्कर साथ में था। तो हजरत यूशा इब्ने नून ने लश्कर को लेकर के हजरत यूशा इब्ने नून जिहाद के लिए रवाना हुई और लश्कर का मुआयना किया। लश्कर के मुआयने पर हजरत यूशा इब्ने नून ने फरमाया, अगर लश्कर में 3 किस्म के लोग हो तो वो वापस हो जावे। एक वो जिसने नई नई शादी की है और उसको दुल्हन की मोहब्बत सता रही है, एहतियाज है उसका, तो वो मेरे लश्कर से वापस चला जाए। एक वो जिसने घर बनाया और घर की छत पड़ी नहीं है, अभी अधूरा मकान है, उसका दिल मकान में अटका हुआ है, वो आदमी भी मेरे लश्कर से वापस हो जाए। और तीसरा वो जिसने मादा जानवर खरीदा है, बकरी है, भैंस है, गाय है, ऊंटनी है, कोई मादा जानवर खरीदा है, वह हमला है और उसको बच्ची की उम्मीद है, तो ऐसा आदमी भी मेरे लश्कर से वापस हो जाए। बुखारी शरीफ में यह वाकया मौजूद है। अजीब व गरीब रिवायत है। 3 किस्म के लोग यूशा इब्ने नून ने फरमाया, मेरे लश्कर में अगर मौजूद हैं तो वो वापस हो जाए। अल्लाह से कमाल इश्क, ताल्लुक और मोहब्बत और फिदाइयत के बगैर कभी भी गजवा फतह नहीं हो सकता है। दुनिया के असबाब में लगा हुआ इंसान और मौलाए हकीकी से झूठा इश्क का दावा, उसके दिल में यह आरज़ू है मकान पूरा करना है, जिहाद में चला गया, मादा जानवर बच्चा देगा, उससे ये होगा वो होगा, प्लानिंग है। ये दुनियावी मशगूलियात को लेकर के ये शौक शहादत में जिहाद नहीं करेगा। ये अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए नहीं, ये तो असबाब की दुनिया में खो गया है, वापस हो जाए। खैर पहुंचे, सुबह में यूशा इब्ने नून ने जब लड़ाई शुरू की, जंग शुरू हुई, जिहाद शुरू हुआ, होते 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 सूरज गुरूब होने का वक्त आया। अभी जंग फतह नहीं हुई मुकम्मल तौर पर। हजरत यूशा इब्ने नून ने सूरज की तरफ मुखातब होकर के फरमाया, तू भी अल्लाह की मखलूक है, हम भी अल्लाह की मखलूक है, तू भी अल्लाह के हुक्म का ताबे है, हम भी अल्लाह के हुक्म के ताबे हैं। एलाए कलिमतुल्लाह के लिए जान की बाजी लगा देना और बागियों का सर कलम करना, यह भी अल्लाह का हुक्म है। और तेरी गर्दिश पूरी हो चुकी है तो तेरे डूबने का वक्त अल्लाह के हुक्म के तू भी ताबे हैं। ये तो सूरज से मुखातब होकर के कहा। अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ, फिर अल्लाह से मुतवज्जे होकर के कहा, ऐ अल्लाह, जिस मकसद को लेकर के हम निकले थे अभी मुकम्मल फतह नहीं हुई, ये भी तेरी मखलूक है, हम भी तेरी मखलूक है, ये भी तेरे हुक्म के ताबेदार हैं, हम भी तेरे हुक्म के ताबेदार हैं, लिहाजा इसको अभी रुकवा दे ताकि हमारा काम पूरा हो जाए। बुखारी शरीफ में रिवायत मौजूद है, सूरज रुक गया, यहां तक कि जंग फतह हो गई। अब गनीमत के माल तकसीम करने के, गनीमतों के माल जमा करने के थे। उस वक्त गनीमत हलाल नहीं थी। आका फरमाते हैं, अतीतु जवामी अल कलिम व नुसिरतु बिर्रअब व उहिल्लत लियल गनाइम व जुइलत लियल अर्दु मस्जिदन व तहूरा व उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा व खुतिम बियन नबिय्युन फुज़िलतु अलल अंबिया'i बिसित्तिन। सारे नबियों पर 6 चीजों को देकर खुदा ने मुझे फौकियत दी है जो किसी नबी को नहीं दी।
फज़िलतु अलल अंबियाई बिसत्तिन, तमाम अंबिया के मुकाबले में मुझ मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 6 चीजें अता फरमाकर फौकियत दी। अतीतु जवामी अल कलिम, मेरे अल्फाज बहुत मुख्तसर लेकिन मानी के समंदर। वनुसिरतु बिर्रअब, 2 महीने की मसाफत की दूरी पर मेरा रोब चलता है। वहिल्लत लियल गनाइम, गनीमतें मेरे लिए हलाल है। वजुइलत लियल अर्द मस्जिदन व तहूरा, अगले जमाने के उम्मतियों के लिए और अंबिया के लिए नमाज की जगह भी नमाज होती थी। आका की बरकत से कायनात की सारी जमीन इस उम्मत के लिए सजदागाह बना दी है। किसी पैगंबर को तयम्मुम नहीं मिला था, इस उम्मत को तयम्मुम मिला। तो 6 चीजें मुझे वो दी गई जो किसी को नहीं दी गई। हजरत यूशा जब गनाइम जमा किए, उस वक्त यही अल्लाह की सुन्नत थी, यही तरीका था कि गनीमत के माल जमा कर दो, कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता था। और आसमान से आग आती थी और इसको उठा करके खा जाती थी। यही हाल सदक़ात का था और ज़कातों का था। अल्लाह के लिए दिया हुआ माल आसमान से आग आवे और इसको खा जावे, वो सदका कबूल, वो ज़कात कबूल, वो कुर्बानी कबूल। जैसे कुरान में है, आदम के 2 बेटे इक़र्रबा कुर्बानुन फतुक़ब्बिल मिन अहदिहिमा वलम युतक़ब्बल मिनल आखर। ये एक दस्तूर था खुदा का, आदम के जमाने से लेकर यूशा तक का, आका से पहले तमाम अंबिया के साथ। ये तो अल्लाह ताला ने इस उम्मत पर एहसान फरमाया पैगंबर के सदके में कि इस उम्मत को जंग के अंदर गनीमतों में जो माल मिला वो गनीमतों का माल हलाल हो गया, वरना अगली उम्मतों में हलाल नहीं था, उन शरीयतों में हलाल नहीं था। इसी दस्तूर के मुताबिक हजरत यूशा ने वो गनीमत का माल जमा किया, आग लगाई, लेकिन आग लगी नहीं। बराबर ध्यान से सुनो, कैसा पैगंबर मादा जानवरों के बच्चे के उम्मीदवारों को वापस कर दिया था, अधूरे घर वालों को वापस कर दिया था, नई नई दुल्हन, नई नवेली दुल्हन के शौहर को वापस कर दिया था। तो मुखलिस लोगों का मजमा था। फिर आखिर गनीमत के माल में आग क्यों नहीं लगी? हजरत यूशा पैगंबर थे और पैगंबर ही इन हिकमतों को समझ सकता है। मालूम हुआ कि गनीमत में खयानत हुई। वमन युग़लिल याति बिमा गल्ल यौमल क़यामह, खड़ी खयानत कबीरा गुनाह है और मालिक गनीमत में खयानत अकबरुल कबीरा है। कबीरा में भी बात बहुत बड़े गुनाह होते हैं, तो मालिक गनीमत में खयानत, जैसे झूठ बोलना कबीरा गुनाह, लेकिन झूठी गवाही देना कबीरा से भी कबीरा गुनाह। क्यों? झूठ बोलना लाजिम है और झूठी गवाही देना मुताअद्दी है। इसकी गवाही से किसी का हक मारा गया, इसकी गवाही से किसी पर नाहक सजा नाफिज की गई, बहुत बड़ा गुनाह है। इसीलिए आका ने अला उखबिरुकुम बिअकबरिल कबाइर अल इशराक बिल्लाह व हुकूकुल वालिदैन व शहादतुज ज़ूर औ कौलुज ज़ूर फमा ज़ाल युकर्रिरुहा हत्ता कुल्ना लैतहु सकत। एक मर्तबा आका ने फरमाया, मेरे साहबा बड़े बड़े गुनाह गिनवाऊं? पैगंबर ने खुद फरमाया, बड़े बड़े गुनाह गिनवाऊं? अल्लाह के साथ, अल्लाह की जात, अल्लाह के सिफात और अल्लाह की तौहीद में, वहदानियत में, जात या सिफात में किसी को शरीक ठहराना, इबादत में शरीक ठहराना पहले नंबर में, माँ बाप की नाफरमानी करना दूसरे नंबर में, शहादतुज ज़ूर कौलुज ज़ूर, झूठ बोलना या झूठी गवाही देना। आका फरमाते रहे शहादतुज ज़ूर और कौलुज ज़ूर, शहादतुज ज़ूर। हम कहने लगे कि अल्लाह के नबी तो अच्छा, इतनी देर तक बार 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 शहादतुज ज़ूर और कौलुज ज़ूर, शहादतुज ज़ूर और कौलुज ज़ूर। दुनिया में कौन सा महकमा ऐसा है जहां झूठ की बुनियाद पर गवाहों का 2002 से लेकर के आज तक के मसाइल में और हमारे निजी मामलात में और घरों में
क्या क्या हो रहा है, शहादत ज़ूर और कौल और उसका नया नाम के बयान बदल दिए। इस पर आका ने ये फरमाया था, हजरत यूशा इब्ने नून ने फरमाया आग लगी क्यों नहीं, जरूर खयानत हुई, ऐलान हुआ ये जितने कबाइल आए हैं हमारे साथ, हर कबीले से 2 या 3 आदमी आकर मुझसे मुसाफा करे। इस ऐलान के बाद जितने कबाइल थे, अभी सूरज डूब नहीं हुआ, रुक गया है, जितने कबाइल के लोग थे इनमें से 2-2, 3-3 आदमी ने आकर के हजरत यूशा इब्ने नून से मुसाफा किया। 1, 2, 3 कबीले के 1-1, 2-2, 3-3 आदमी के हाथ और हजरत यूशा के हाथ चिपक गए। उसका हाथ हजरत यूशा पैगंबर के हाथ से चिपक गया। हजरत यूशा इब्ने नून ने फरमाया तुम्हारे कबीले के लोगों ने गनीमत के माल में से खयानत की है, चोरी की है, जरा तहकीक करो किसने चोरी की। बस ये ऐलान हुआ ही था, इस कबीले के कुछ लोगों के हाथ हजरत यूशा के हाथ के साथ चिपक गए और वो कबीले के चोर पकड़े गए। फौरन बैल के सर के बराबर सोने का डला, सोने की बड़द के माथे के बराबर वो कबीले के लोग उठा करके ले आए। हजरत यूशा ने आग लगाई पूरी गनीमत के माल में। अब वो आसमान से आग आई और ये आग लगाई हजरत यूशा ने और सबको जला करके खाक कर दिया। हजरत यूशा ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि यह गजबा कबूल हो गया, इस पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। माले गनीमत की खयानती ये पैगंबर पर एक जमाने में सूरज का गुरूब रुका रहा था। हजरत मुहद्दिसीन ने लिखा है, माजम की रिवायत में है, कई दिनों तक हजरत यूशा के लिए जब ये मसाइल हल नहीं हो गए तब तक सूरज का गुरूब रुका रहा। और उसके बाद इमामुल अंबिया ताजदार मदीना हम सब के आका हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी जलील अली इब्न अबी तालिब की दमाद असर पैगंबर के काम की मशगूलियत और अल्लाह के हुक्म की फरमाबरदारी के पेश नजर वो सूरज का गुरूब रुका रहा था। फिर या सूरज गुरूब होने के बाद वापस लौट आया था पहली सूरत में। और इसमें यह भी फर्क किया है कि वो सूरज गुरूब से पहले रुका रहा और गुरूब के बाद अस्मा बिन्त उमैस के बकौल जो राविया हदीस है वो यूं फरमाती हैं कि मैंने सूरज को गुरूब होते हुए भी देखा और गुरूब के बाद वापस तुलू होते हुए भी देखा। यह है हमारे आका ताजदार मदीना हबीब खुदा हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअज्जिज़ात। अल्लाह के पैगंबर के जमाने में एक ईसाई था, इस्लाम ले आया, सूरह बकरा और सूरह आली इमरान पूरी सीख ली, हिफ्ज कर ली। ये कम बखत किसी वजह से मुर्तद हो गया। अब वो लिखना भी जानता था, ताका ने उससे कुछ लिखवाया भी, यानी कुरान नहीं कुछ लिखवाया भी। 2 सूरतें पूरी हिफ्ज कर ली अहकाम के साथ। और उस जमाने में कुरान इसी तरह सहाबाए किराम हिफ्ज किया करते थे। पूरे कुरान करीम के मानी, मतालिब, इज्तिहाद, इस्तिंबात अहकाम और उस पर अमल हुआ। ये मुर्तद हो गया, वो मर गया। जब वो मर गया और ईसाइयों के तर्ज के मुताबिक उसको ताबूत में रखकर कब्र दे दिए तो सुबह में उसकी लाश को कब्र में बाहर फेंक दिए, क्योंकि उसने गुस्ताखी की थी। एक तो मुर्तद हो गया था और पैगंबर को ईजा और तकलीफ दी। वो तकलीफ ये थी कि वो यूं कहा करता था कि अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ नहीं है, मैं जो लिखकर देता हूं वही बोलते हैं, वरना इनके पास दूसरी कोई चीज नहीं आया। अल्लाह पैगंबर की ईजा और तकलीफ पहुंचाता था और इसी के साथ साथ वो मुर्तद भी हो गया था। और मुर्तद की सजा इस्लाम में कत्ल है, लेकिन वो मर गया।
जब उसकी लाश को कब्र ने बाहर फेंक दिया तो ईसाइयों ने ये समझा कि ये इस्लाम से हटकर के वापस मुर्तद हुआ है, तो ये शरारत मुसलमानों की ही हो सकती है, और पैगंबर के इशारे पर अयाज़ुबिल्लाह इन्होंने ऐसा किया है। तो बहुत बड़ी खाई खोदी और इसमें इसको डाल दिया वापस। अंदर डालने के बाद दूसरे दिन वापस जमीन ने उसकी लाश को बाहर फेंक दिया। अब ये लोग फिर वापस जमा हुए और जितनी इस्तिताअत और जितनी ताकत और जितनी कोशिश से वो लंबे खाई खोद सकते थे उस जमाने के लिहाज से अपनी सारी ताकत खत्म करके एक बहुत ऊंडी कब्र बनाई और उसमें उसकी लाश को डाल दिया। तीसरे दिन वापस फिर इन्होंने कान पकड़ लिए। बहुत सारे लोग इस्लाम भी ले आए और कान पकड़ लिए कि ये मुसलमानों की शरारत नहीं है, ये तो कुदरत का मामला है और कुदरत ही की ताकत ने इसको जो है अंदर जमीन के अंदर कबूल नहीं किया है। जैसे एक जमाने में फिरौन अल-यौम नुनज्जिका लिबदनिका लितकूना लिमन खल्फका आया, उसकी लाश को बहर कुलज़ूम ने कबूल नहीं किया था और उसकी लाश को बाहर फेंक दिया था और मिस्र के म्यूजियम में फिरौन की लाश महफूज कर दी गई। अब उसकी लाश को वापस जब बाहर निकाल दिया, बहुत बड़ा तबका जो है वो तो हल्का बगोश इस्लाम हो गया, लेकिन अल्लाह के पैगंबर के माजिज़े का इस्तेहज़ा और अल्लाह के पैगंबर की ईज़ा और इर्तिदाद की इंतहाई खतरनाक सजा फिर बाद में ईसाइयों ने उसकी लाश को बाहर दूर जंगल में फेंक दिया और कुत्ते और खिंजीर और गीज और इस किस्म के जानवरों की वो खुराक बन गई और इन लोगों ने इसको खाया। ये हाल अल्लाह के पैगंबर के माजिज़ात की जो है नाकदरी करना और माजिज़ात को कबूल न करना और तस्लीम न करने की सूरत के अंदर यह अल्लाह का अज़ाब आया। वसीम रिजवी ने तो अपने लिए खुद सजा तय कर ली कि मेरे मरने के बाद मुझे जला दिया जाए, और वो शैतान लईन स्वामी सच्चिदानंद उसकी जो है मैयत को उसकी लाश को जो है आग लगाए, तो उसने तो जीते जी अपनी सजा खुद मुकर्रर कर दी। आखिरत में खुदावंद कुद्दूस की तरफ से मुकर्रर करदा सजा अल्लाह बेहतर जानता है। ये माजिज़ात अंबिया मैंने बहुत 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 मुख्तसर 6, 8, 10 माजिज़ा जिक्र किए। ये दलाइल नबूवत है, ये मकसद नबूवत नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा माजिज़ा कुरान है जो इमामुल अंबिया ताजदार मदीना हम सब के आका हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया था। माजिज़ा पैगंबरों के बयान करने का मकसूद और ये मकसद क्या है? जो तालीमत नबूवत है, जो अखलाक नबूवत है, इनको हम अपनी जिंदगी के अंदर अपनाएं। कुरान तिलावत की किताब है, कुरान अल्लाह का कलाम है, कुरान के मानी और मतालिब में गौर व फिक्र करें, कुरानी अहकामात पर अमल दरामद हो। यही इंसानियत के लिए सबसे कामयाब नुस्खा है और यही इंसानियत का कामयाब जीवन बना सकता है। लिहाजा मैंने कब्र अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माजिज़ा जिक्र की एक किताब में मामूली सा रिसाला है, अल्लाह के पैगंबर के से 300 माजिज़ा जिक्र किए गए हैं। माजिज़ा दलील नबूवत जिससे इंसान को अपने दीन, अपने ईमान, अपने पैगंबर और शरीयत के अहकामात पर अमल में इंतहाई दर्जा लुत्फ अंदोज होता है। ये कोई सहर नहीं है, ये कोई कहानत नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से अता किए हुए मौहूब वो दलाइल हैं जिससे ये पता चलता है कि घर के आम चीज मुद्दई नबूवत जात के हाथ पर खुदा जाहिर करके इंसानियत के नफे का काम अल्लाह ताला करवा देते हैं, वरना अल्लाह ताला को इसकी जरूरत नहीं थी, अल्लाह ताला इसका मोहताज नहीं था, लेकिन फिर भी इंसानों की रुश्त हिदायत के लिए और ईमान पर आसानी के लिए अल्लाह ताला की तरफ से ये फैसले हुए। इनको दलाइल नबूवत कहा जाता है। अब अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अनवार और आका के बरकत का तज़किरा इंशाअल्लाह आइंदा करेंगे। चंद जरूरी ऐलानात हैं। एक ऐलान ये है,
जम्मू कश्मीर में एक दारुल उलूम है गुनियतुल उलूम, जहां पिछले लॉकडाउन में मुख्तलिफ हिंदुस्तान के सूबों में हमारी जमातें फंसी हुई थी, रुकी हुई थी। इनमें जम्मू कश्मीर के इस दारुल उलूम में अपनी जमात लंबे जमाने तक ठहरी थी, जैसे यूपी में, जैसे बिहार में, जैसे राजस्थान में। अल्हम्दुलिल्लाह इन हजरात ने बहुत जबरदस्त खिदमत की थी। 150 पौने 200 तलबा मदरसे में तालीम हासिल करते हैं। 25 लाख से ज्यादा सालाना खर्च हैं। अकाबिर उलमा जो वहां के जिम्मेदार हैं यहां तशरीफ ले आए हैं। कश्मीर का इलाका मैंने पिछली जुमा को एक 16 साल की बच्ची की दर्दनाक दास्तान आपकी खिदमत में पेश की थी। लंबे जमाने से मुजाहदा सहते सहते बर्दाश्त करते करते इस्लाम और ईमान को जिंदा रखने की कोशिशें और मेहनतें कायदे हक़, उलूम नाफ़िआ, अमाल सालिहा और अखलाक फादिला के कारबंद जमात उलमाए देवबंद के सपूत अल्हम्दुलिल्लाह इन इलाकों के अंदर एक जबरदस्त दीनी खिदमत अंजाम देते हैं। इदारों का बका वक्त का अहम तरीन तकादा है। देखिए इस वक्त मुल्क के हालात इंतहाई खतरनाक है। सूबा यूपी जल रहा है, कट रहा है। इंतहाई खतरनाक कयामत खेज मजालिम ढाए जा रहे हैं। एक तरफ मुस्लिम सियासी तंजीमें वो अपना अपना रोल अदा करने के बजाय अपने अपने रंग दिखाने में उभर पड़ी है, तो दूसरी तरफ कहीं कटना है, कहीं जलना है, कहीं निर्दोष बेकसूर की जाने जो है लग रही है। ऐसे मौके पर जरूरत है इस बात की कि मुल्क की मौजूदा सूरत हाल और बदली हुई सियासत को नजर गैर के साथ दिल की गहराइयों से इक्तिदार की लालच और हवस के बगैर, नाम के नापाक जज्बात के बगैर इंतहाई खतरनाक शरारत, फसाद और शरअंगेजी को समझ करके लाया अमल मुस्तकबल का तय करना चाहिए। अपनी मसाजिद की हिफाजत, अपने मदारिस की हिफाजत, अपनी तालीम गाहों की हिफाजत, अपने समाजी इदारों की हिफाजत, अपनी सियासी ताकत को इत्तेहाद की बुनियाद पर मजबूत करने का वक्त का अहम तरीन तकादा है और इसको समझने की बहुत बड़ी जरूरत है। वरना अगर अब भी मुसलमान ख्वाब गफलत में से बेदार नहीं होगा तो हमारा मुस्तकबल जो है बहुत तारीक नजर आएगा। अल्लाह ताला इससे हिफाजत फरमाए। लिहाजा इदारे का नमाज से फरागत के बाद ताउन फरमाते जाएं। दूसरा ऐलान, अल्हम्दुलिल्लाह इस मस्जिद में पहले भी कई मर्तबा आपको तफसील बता दी गई है, लेकिन अब भी जब लोगों के पास जाते हैं तो लोग पूछते हैं क्या, तब एक दिमाग पर चोट लगती है और दिल में गहरा नस्तर पड़ता है कि बिल आखिर समाज तक ये बात नहीं पहुंची या हम पहुंचा नहीं सके। खैर, मांगने जाने वालों का काम तो बर्दाश्त करना ही है, चाहे वो अपने लिए तो कोई मांगता ही नहीं, या तो मस्जिद के लिए मांगेगा या मदरसे के लिए मांगेगा या तो समाज के लिए मांगेगा। सियासत में तो मांगना है नहीं, वहां तो सबका लूटा हुआ सरमाया बिखेरना है। एक बहुत बड़ा समाज मिला है, एक बहुत मजबूत ताकत मिली है। ये मुसलमानों के बलबूते पर मजबूत होगी। क्या फायदा घरों में रखा हुआ सरमाया, क्या काम आएगा, क्या काम देगा? हम ये सोचते हैं क्या काम देगा। बाद लोग कहते हैं पैसे रखते हैं, कुछ कड़वे कसेले हालात आवे तो काम आए। और नमाज़न अब्दी भी अल्लाह फरमाता है, बंदे तू जैसा तू मन करेगा वैसा मैं तेरे साथ मामला करूंगा। कड़वे कसेले हालात आवे क्यों? ये ख्याल बहुत बोदा है, ये कमजोर है। हुस्नुज़्ज़न बिल्लाह, अल्लाह से अच्छा गुमान रखो, सदका किया करो। कड़वे कसेले हालात क्यों आएंगे? कभी आने वाले ही नहीं। फ़इन्नल बलाया ला यतखत्ताहा, कोई बला सदके से आगे कभी बढ़ ही नहीं सकती। ऐलान आया था, अब फिर तफसील से जिक्र कर दें। समाज ने 4.25 बीघा से ज्यादा जमीन आरवा एरिया में
जामे मस्जिद के पीछे वाले हिस्से में यानी किबला की तरफ, जहां तोहफा एसोसिएशन चला करता था, वो जमीन ले ली है 2,86,00,000 में। 1 करोड़ पहला हफ्ता 6 महीने में चुकाने का था, वो 8वें महीने में चुकाया। दूसरा 1 करोड़ जो है 6 महीने के बाद चुकाने का था, उस पर 2-2.5 महीने वधारे हो गए। मोहल्ला मोहल्ला, अफराद अफराद, शख्सियत शख्सियत जाकर के बात समझाई गई। घर दीठ आगे चलकर हम 2 या 5 हजार रुपये तो जमा करा दे। ये हमारा और हमारी नस्लों का मुस्तकबल सोचा गया है। शहर के वस्त में एक जगह है, कई जगह मिलती नहीं। बाद लोग यूं भी कहते हैं कि अंदर ले जाते हो, भाई देखो मार्केट टेम्परेरी चल रही है, ये कोई जरूरी नहीं है। आने वाली नस्लों को वक्त के तकादे पर वो जो काम करना चाहेंगे, हमारा समाज का एक धारा है कि जनरल बोर्ड सर्वानुमते बहुमती ना साथे जो निर्णय ले ये ठहराव बनी जाए, तो आने वाली नस्लें भी काम करेगी। लेकिन जगह होगी तो, अगर जगह नहीं है तो क्या काम करेगी? तो बाद लोगों का ये जहन है कि शहर के बीच में इतने दूर, यहां से 20 रुपया रिक्शा वाला लेता और डाली पहुंचाने के दूसरे 25 रुपये तो 100 रुपये तो यूज खर्चा हो जाता है, तो हमारे लिए तो कोई काम की नहीं। मेरा स्वार्थ, मेरा नफा, मैं कोई मादा परस्त नफा परस्त कौन हूं? इंसान ये सोचे ये तो नफ्स परस्ती है। नफ्स परस्ती अच्छी चीज नहीं। कयामत तक की नस्ल इंसानी की सोच ये ईमानी सोच। हम जमात पे जाते हैं, कयामत तक की नस्लों की हिदायत के लिए यहां गश्त करते हैं, इसका असर अमेरिका में पड़े, बोलते हैं। तो ये अमल का जमाना कब आएगा? ये अमल का जमाना है भाई। नफ्स परस्ती के लिए नहीं, मादा परस्ती के लिए नहीं, अगराज परस्ती के लिए नहीं, औना परस्ती के लिए नहीं, नस्ल इंसानी के ईमान, अकीदा और दीन के तहफ्फुज और बका का ये काम है। लिहाजा समझ में आता है, जिन हजरात ने लिखवाए हैं पैसे, इसको मुकद्दम कर दो और आज ही पहली फुर्सत में 2 कदम चलकर अदा कर दो। इंशाअल्लाह चाहे दीन हो, चाहे मजहब हो, चाहे समाज, 2 कदम चलकर के ताउन करने की लज्जत और महब्बत और लुत्फ जब तक चखोगे नहीं तब तक मौत नहीं आएगी। कदम चलकर के ताउन करना, चाहे मजहब में हो, चाहे तालीम के पीछे हो। अरे 2 मुसलमानों के दरमियान लड़ाई हुई, खाली सुलह करा दी, और इसने कहा भी नहीं अपनी तरफ से एडवांस बनकर के सुलह करा लाया, उसने कहा भी नहीं, वो चाहता भी नहीं, ये एडवांस बनकर सुलह करा लाया। 10 साल के नफली एहतिकाफ से अफजल सवाब इसने कर लिए। मकबूल हज और मकबूल उमरा इसने अपने नामा अमल में कर लिए। ये भी मकबूल हुज्जात के साथ उठाया जाएगा, अगरचे हरम जाने का ख्वाब भी उसके दिमाग में ना आया हो। जरूरत है, वक्त का तकादा है। लिहाजा जिन हजरात ने रकमें लिखवाई है वो पहुंचा दे, जिन्होंने नहीं लिखवाई वो पहली फुर्सत में 1-2 दिन में लिखवा दे, क्योंकि वक्त 2 महीने ऊपर जा रहा है। इन हजरात ने भी जो उधार मामला किया है, अपने कामकाज आगे पीछे किए हैं, तो उनको भी रकम चुकानी है। फिर तीसरा 86 लाख का है 1 साल के बाद, उसके लिए इंशाअल्लाह हम परेशान नहीं करेंगे। लेकिन ये वक्त का अहम तरीन तकाजा है और बहुत ही मन्नत और समाजत के साथ आजिज़ाना दरखास्त है। अगर आपके पास रकम पड़ी हुई है तो 4-6 महीने के लिए कर्ज भी दे दो, और अगर रकम पड़ी हुई नहीं है तो चंदा तो समाज के जितने भी घाटी समाज के अफराद हैं जिन तक हमारी सदा पहुंचती है, कोई घर ऐसा बाकी नहीं रहना चाहिए कि 2 या 5 हजार घर दीठ, चूल्हा दीठ और नकद रकम इस मौजूदा फौरी तकादे पर अदा करना, यह हमारे लिए वक्त की बहुत बड़ी जरूरत है। समझ में आ जाए, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। वक्त के अहम तरीन तकादे को पूरा करने के लिए अल्लाह का दिया हुआ है, हमारा तो है नहीं। वो लग जाता है दीन में, वो लग जाता है इस्लाम और मुसलमानों की नस्ल के बका और तहफ्फुज में, तो ये रहती दुनिया तक के लिए काम आने वाली चीज है। कब्रिस्तान की अड्डी खम दीवार
इसी कौम का वो मुखलिसाना और बहुत ही प्यार भरा ताउन है, जिसके नतीजे में अल्लाह पाक ने इतनी बड़ी प्रॉपर्टी की और इस इस्लाम के शिआर की, जबरदस्त शिआर की अजीम तरीके से हिफाजत फरमाई है। अगर आज हम सब भी तय कर लें कि बाहर और अंदर और बराबर अच्छे अंदाज में डबल पॉइंट वाला प्लास्टर या सिंगल पॉइंट वाला प्लास्टर भी करें तो भी मुश्किल है। और एक जमाने में इतनी बड़ी अदीखम दीवार, कभी जाकर के उन दीवारों पर नजर तो डाले और कहें कि खुदा के बंदे ये लोग भी थे कि जिन्होंने मेहनत करके बेड़ा उठाया और अल्लाह ने उन्हें पार कर दिया। लेकिन मुसलमान इस आंख से कभी देखता नहीं है, इसलिए कि इस आंख में अच्छाई देखने का अंदर में दायज नहीं रहा कि अंदर में अच्छाइयां देखेगी, बुराई जरूर देखेगी, अच्छाई नहीं देखेगी। अच्छाइयां देखने की आदत बनाओ तो हम कहां हैं पता चलेगा, वरना बुराइयां देखने की आदत बनाओगे तो कभी भी इंसान अपने आप का थर्मामीटर नहीं नाप सकता है कि मैं कहां हूं और कितने में हूं। खैर, ये भी एक शियार बन जाएगा। लिहाजा आजीजाना दरखास्त है, आगे चल करके हम इस तकाजे को अपने एतबार से पूरा करने की कोशिश करें। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हज़रात, जैसा ऐलान हुआ, कश्मीर के इस मदरसे में भरपूर ताउन फरमाते जाएं। ये समाज की जगह है, काम वक्त के तकाजे पर लिया जाता है। ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इसी तरह ये मार्केट रहे। आने वाली नस्लें अपने अपने तौर पर जो ज़रूरत और वक्त का तकाजा होगा इसको इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये समाज की वक्फ मिल्कियत रहेगी। लिहाजा इसमें ताउन फरमाते जाएं, मदद करते जाएं। मोहल्ले मोहल्ले कुछ ऐसे नौजवान खड़े हो जाएं कि घर दीठ कम से कम 2-5 हज़ार रुपये वसूल करके समाज के अंदर पहुंचा दें। अभी वक्त तारीखें आगे निकल चुकी है, तकादे बहुत सख्त हैं। यहाँ पर भी बाबा की दुकान के अंदर भी समाज ने टेम्परेरी ऑफिस रखी है। यहाँ पर भी बस स्टेशन के एरिया में भी अनिब भाई बाबा की दुकान के पास ऑफिस है, वहाँ पर भी जो है रकम जमा करा सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक काम के लिए नहीं, बहुत सारे आने वाली नस्लें वक्त के तकादे के मुताबिक उसका सही इस्तेमाल करेगी। इसीलिए खाली इतनी महदूद सोच न रखें कि भाई मार्केट ये वो, लेकिन ये प्रॉपर्टी है, ये एक मिल्कियत है और वो सामाजिक है। लिहाजा इसको समझ करके थोड़ी तकादे पर जितना हो सके इतना जल्द ताउन की कोशिश करें। अल्लाह ताला गैब से असबाब मुहैया फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन कमा यलीकु बिजलाली अज़मतिक व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा इन्ना लतिलावतिल क़ुरान ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم اتنا نفوسنا تقواها وزكها وانت خير من زكاها اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد كما ينقى الثوب الابيض من الدنس ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم ان قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا اذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واغننا إلى سواء السبيل نستغفر الله ربنا من كل ذنب نذنبته عمدا أو خطأ سرا أو علانية ونتوب إليك من الذنب الذي نعلم ومن الذنب الذي لا نعلم اللهم إنك أنت علام الغيوب غفار الذنوب ستار العيوب لا حول ولا قوة إلا بالله نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت خلقتني أنا عبدك ألا أهدك وبعدك ما استطعت أبوء إليك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك واحفظنا بما حفظت به الذكر وانصرنا بما نصرت به الرسل اے اللہ ہم تمام کائنات میں بسنے والی انسانیت کو ہدایت نصیب فرما گمراہی سے حفاظت فرما اس ملک میں انتہائی خطرناک شر انگیزیاں اور فتنے اور فساد کے لیے اے اللہ کھلے عام انسانیت کا قتل انسانیت کا جلانا اور عصمت دری کی شکلیں پیدا ہو رہی ہیں اے میرے پروردگار آپ کے علاوہ ہمارا کوئی مشکل کشا نہیں ہے آپ کے علاوہ ہمارا کوئی حاجت روا نہیں ہے ہم سے ایمان رخصت ہو گیا
तेरा खौफ हमसे रुखसत हो गया, इस्लाम और ईमानी अहकामात हमसे रुखसत हो गए। ऐ अल्लाह, अगर तकवा और तेरा खौफ और इस्लाम और ईमान पर मुसलमान गामजन हो जाएं, अभी अभी आपने अफगानिस्तान को कायनात की सुपर पावर ताकत के मुकाबले में जो फतह अता फरमाई, रब्बुल आलमीन वो फतह हमारे साथ भी है, लेकिन अब हालात के हम शिकार हुए हैं, हमारी भूल का नतीजा है, हमारे गुनाहों की सजा हम भुगत रहे हैं, जालिम हुक्काम के नीचे रह करके हम जुल्म की चक्की में पीसे जा रहे हैं। यह हमारी बेईमानी है, यह हमारा इस्लाम पर कमा हक हो अमल न करना है। तेरा दर भी रुखसत हो गया और तेरा घर भी छूटा। अल्लाह, कोरोना में लड़ाइयां करते थे, मस्जिद नहीं खोलते, मस्जिद नहीं खोलते, अब मस्जिदें खुली हुई है तो तेरा घर गिराबाद है। तेरा डर तो रुखसत हो गया था और टाइम तेरी घर अल्लाह याद आया था, अब वो घर भी रुखसत हो गया। जब तक मुसलमान तेरा डर और तेरे घर से वाबस्ता रहेगा तो सरबलंदी और सरफरादी हमारे कदम चूमेगी। हम तौबा कर लेते हैं, अब माफी की भीख मांग लेते हैं। अल्लाह हमें माफ कर दे, इस मुल्क से जुल्म तशद्दुद को खत्म फरमा दे। अल्लाह, इंसाफ का सूरज चमका दे। अल्लाह, एक मस्जिद बाबरी चली गई। अल्लाह, अब मथुरा की ईदगाह में 6 दिसंबर को इनके नापाक मंसूबे हैं। अल्लाह, अभी एक ज़ुल्म पूरा नहीं हुआ कि उसी मथुरा की जामे मस्जिद के अंदर मूर्ति बिठाने का इनका चैलेंज है, फिर काशी का नंबर लेने वाले हैं, फिर दुनिया की तमाम मसाजिद का। रब्बा, ये हमें कोई पैगाम दे रहे हैं, ऐ मुसलमानों, अगर तुम इस्लाम पर नहीं आओगे तो तुम सफाई हस्ती से इस तरह मिटा दिए जाओगे। पहले हमारे मसाजिद मिट रही है, हमारे मसाजिद मंदिरों में तब्दील हो रहे हैं। ये कैसा भारत? 52,000 उलमा फांसी के फंदे पर लटके थे, इनके जिस्म के परखचे उड़ा दिए गए थे, इनकी बोटियां फिजाओं में लहरी थी। हमारे परवरदिगार, यही वो भारत है जिसमें मस्जिद मंदिर में बदल रही है। हाय हाय, फिर भी मुसलमान बट रहा है, बट रहा है, बट रहा है। मुसलमान के इज्जत को दांव पर लगा रहा है। हाय हाय, कैसी बेगिस कौम है ये। ऐसे परवरदिगार, जो परत से उड़ गए, जो फिदाओं की नजर बोटियां हो गई, वो कुर्बानियां भूल गए, कोरोना भी भूल गए। मुसलमान फिर से तेरी मस्जिद को गैर आबाद कर दिए। करीब में कोई बहुत बड़ा अजाब तेरा आ रहा है जो झंझोड़ रहा है। क्या मुसलमानों, एक मर्तबा हजारों में गए, अब लाखों में चले जाओगे। अल्लाह, हमारे लिए अबरत का निशान है, आज जुमा का दिन है, अब तौबा कर लेते हैं। कोई भलाई अच्छी नजर नहीं आ रही, हर बुराई को फरोग देने की कोशिश की जा रही है। नाम नाम जात जात बट 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 बटा करके हर चीज बढ़ चुकी है। इसकी आंख बढ़ गई, इसका कान बढ़ गया, इसका दिल दिमाग बढ़ गया, इसके आधा जवारे बढ़ गए। ऐ मेरे परवरदिगार, आज तौबा का दिन है, अब माफी की भीख मांग लेते हैं। अब ये सोचते हैं कल उस बस्ती में ये हुआ, आज ये बस्ती में भी तो हो सकता है। आज मुसलमान देखने गैरों के साथ जा रही है। आज एक साजिदा बहन एक संजय के साथ चले जाने पर मुर्तद भी हो गई और उसको मार भी दिया, गला भी दबा दिए। अब उसकी मां मुमताज उस पर अफसोस करती है। आज का किस्सा है, काठियावाड़ का है। किसका रोना रोए, इसको कोई अच्छा नहीं लगता है। काफिरों से दोस्ती है, फिर भी मुसलमान बना रहा है। क्या मस्जिदें बाकी रहेगी? क्या मदरसे बाकी रहेगी? क्या इस्लाम और मुसलमान बाकी रहेगी? हमारी नस्ल कहां जा रही है? ऐ मेरे परवरदिगार, तौबा करते हैं। अल्लाह, दिलों को नरम कर दे। कल किसी के घर में ये वाकया हुआ, परसों मेरे घर में भी ये हो सकता है, आज किसी के घर में होता है, कल मेरे घर में भी वो दिन आने वाला है। तू ही हिफाजत करने वाला है, लेकिन माहौल की रंगा रंगी होती है। अल्लाह, तेरे ही बुलंद अल्लाह फैसले पर एक हिम्मत की है, एक काम किया है साथियों ने। लोगों के दिलों को नर्म मुलायम फरमा दे। कहां शादियों में, कहां फटाकड़ों में दौलत लग रही है,
اور اسلام اور مسلمانوں کے کام آنے والی چیزیں انسانوں کو اس کا بقا، اس کا نفع سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اے میرے پروردگار، وہ پٹاخوں میں نفع سمجھ بھی آ رہا ہے، غیر اسلامی تہواروں میں فتح نظر آ رہا ہے۔ 100 زائد کو ان کندھوں پر سوار کر کے کورونا بھی افغانستان پہنچا دیا، پھر بھی وہی کہ مسلم محلوں میں ایک محلے میں 2 4 گلیوں میں جنازے گئے تھے، اور پھر بھی انہیں محلوں میں پٹاخے پھوٹ رہے ہیں، انہیں محلوں میں ہولی منائی جا رہی ہے، دیوالی منائی جا رہی ہے۔ یہ کیسی بھولنے والی قوم ہے، وہ شادیوں میں گیروں کو شرمانے والا کام یہ کر رہا ہے۔ اے میرے پروردگار، توبہ کر دیجیے، اب معافی کی بھیک مانگتے ہیں۔ رب کریم، یوپی تو جل رہا ہے، وہ آگ گجرات تک پہنچ چکی ہے، کل کو کہیں گھروں میں نہ پہنچ جائے۔ اور ستار العیوب اور غفار الذنوب اور بہت بڑے معاف کرنے والے اللہ، معافی کی بھیک مانگتے ہیں، معاف فرما دے، توبہ کو قبول فرما لے۔ اے اللہ، اس ملک کی حفاظت فرما، اسلام مسلمانوں کی شعائر اسلام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، مدارس کی آبیاری فرما، دعوت کے مبارک کام کی داخل خارجی فتنے سے حفاظت فرما۔ بہت ہو گیا اختلاف اور جھگڑے، عہدے، اے اللہ بہت ہو چکا، انسانیت مر مٹ رہی ہے۔ انسانیت کی ہمدردی کے لیے اتحاد اور اتفاق کی طاقت کو مضبوط سے مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جانوں کی، مالوں کی، عزت کی، آبرو کی، اے اللہ عصمتوں کی، عزتوں کی بھرپور حفاظت فرما۔ مرحومین کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما، قبروں کو نور سے بھر دے، روحوں کو علیین میں داخل فرما، جنت الفردوس کے بلند درجات عطا فرما۔ اس تقاضے کو خزانہ غیب سے، اپنے فضل و کرم سے اور عالم کے تمام تقاضوں کو تو ہی پورا کرنے والی ذات ہے، اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دے۔ صرف جیب پر نگاہ لگی ہے، غیب بھی ہے اور تجھ سے ہی مانگا گیا ہے، اور تیری حفاظت کرنے والے ہیں، اسباب بھی گرم فرما دے، اور تیری ذات کو بھی اے اللہ وابستگی ہمیں تیری ذات سے نصیب فرما دے۔ پریشان حال بھائیوں کی پریشانی دور فرما، مقروضین سے قرض کی ادائیگی کے بھی شکلیں پیدا فرما، بے قصور جیلوں کی سلاخوں کو محبوس اور محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، جو لوگ علاج لے رہے ہیں ہاسپٹلوں میں صحت شفائے کاملہ عطا فرما۔ مانگی ہوئی دعائیں اپنے فضل پیارے آقا کے حسنات لوگوں کی آمین اور گرم آنسو کے صدقے میں قبول منظور فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وصحبہ وبارک وسلم برحمتک۔